बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गुरु जी ने, क्योंकि ईमेल इसी नाम से आई थी और वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग मेगा किचन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Very few places on this planet are blessed with so much fullness. Nestled nearly 21 kilometers outside the busy Silicon headquarters of India, Bangalore is the Art of Living International Center, popularly known as the Sri Sri Ravi Shankar Ashram. Millions of people from nearly every country on this planet visit this place each year. It's not just a holiday that they come seeking for, they come here seeking something more. They come here seeking peace, serenity, rejuvenation, and above all, knowledge and spiritual upliftment. The ashram is home to everyone who enters its gates. On an average, around 1 lakh people visit this place every month. While 700 live permanently on its premises, the rest come here for a couple of days to attend the immensely popular Art of Living courses, to learn meditation, to unwind and recharge. But most importantly, to catch a glimpse of their beloved master, Sri Sri Ravi Shankar. You can easily call this place the largest extended family in the world. There are 1100 rooms, an 18,000 square feet kitchen, a 40,000 square feet dining area that caters to thousands of people every day. There are no holidays for this kitchen, come what may. 365 days a year, rain or storm, the food is served on time. Navratri, the 9-day period from the new moon day to the 9th day of Ashwin month, is considered auspicious. It is one of the biggest festivals celebrated at the Art of Living Ashram. Pujas, homas, prayers, singing, dancing, meditations, food and festivities are the hallmark of these grand celebrations that continue for the 9 days. Lakhs of people from all sections of society, from all over the world, gather here to witness this grandiose spectacle of divinity and faith. Today is Ashtami, the 8th day of Navratri. It is the pinnacle of pujas, homas and celebrations. Nearly 75,000 people are expected at the ashram today. They all will be having prasadam, or the customary blessed food, at the ashram kitchen. Like every day, an army of enthusiastic volunteers gears up for the job in the basement of the kitchen, armed with heavy-duty knives and chopping boards. Today for lunch, the menu is plain rice, curd rice, rice payas, पुलियोगरे, मूंग दाल हलवा, आलू कड़मणी सब्जी, उबट्टू, पापड़, संडिगे, sweet bundi and
Khara Bundi, and the work has already started. लगे रहेंगे। A cylinder of cooking gas in an average household lasts up to 2 to 3 months. But if you have a stove like this, then not more than 25 minutes. On an average, 180 to 200 cylinders are consumed by this kitchen in a month. And it is not the only source of fuel. This huge steamer heats up to 1,000 gallons of water, which provide enough power and steam to cook rice and boil dal and vegetables. This mammoth steamer consumes 1 ton of eco-friendly fuel bricks every day. The cooks of this massive kitchen are masters of their craft. They don't need to measure salt and spices by tablespoons. A few kilos sprinkled just with a rough estimate by these master chefs turns out to be just right. In these 9 days of Navratri, a mind-boggling 125,000 kilograms of food items have been consumed. 30,000 kilograms of rice, 7,000 kilograms of potato, 2,000 kilograms of ghee, 9,000 kilograms of tomato, 7,000 kilograms of cauliflower, 2,000 kilograms of tur dal, 11,000 liters of milk and other spices have been used to prepare this delectable Sattvic cuisine. The quantity of salt itself that went into the food was nothing less than a staggering 2,000 kgs. All the food cooked here is pure Sattvic food. Sattvic meaning high energy vegetarian food, which increases the subtle life force prana in the body. Not only physical cleanliness is important inside the kitchen, but a lot of emphasis is given to purity of mind as well. All this has a positive effect on the food. It's already 12:30 p.m. and the food has to be laid out by 1 o'clock. It's a race against time. It is more than surprising that this humongous kitchen is manned by a handful of people. It doesn't look like much of a concern. Everything is flowing as smoothly as every day. Preparing the food is one thing, and serving it to thousands of people in less than 1 hour is another Herculean task. But before that, the food needs to be transported to the dining area. They've cut it just in time. The hearts are already satiated with bliss and festivity. And today, nearly 75,000 people have gone back with a satiated stomach. Meanwhile, in the kitchen, the preparation for the next meal has already started. फूल टाइप लग रहा है। फूल
सी होती है, इस तरह के राउंड स्टार्स। इससे पहले भी जो है हमने कई सारे जो है मेगा किचन्स देखे हैं, लेकिन मुझे इन मेगा किचन्स की जो है ना एक जो सबसे अच्छी बात लगती है कि जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ईशा फाउंडेशन का भी देखा हुआ है, लाइक किचन नहीं देखा, बट ये कि हम लोगों ने एक उसकी वीडियोस देखी कि किस तरीके से वहां पर लोग क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, और जैसे नवरात्रि स्पेशल अगर हम लोग बात करें इसमें भी ये दिखाया गया। तो मतलब मुझे एक तो जो आश्रम उसका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगा है। हाँ। जिस तरीके से एक्टिविटीज बीच में करवाई जाती हैं, और जो किचन है जहां तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जितने भी उसके अंदर जो कुक हैं वो सब प्रोफेशनल नहीं है, वो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और अच्छी चीज क्या आ सकती है कि आप लोगों को इतनी अच्छी चीज सिखा रहे हैं कि लोगों की सेवा करो। वाकई ये चीज अगर मैं बात करूं तो जो है ना सब्जी काटने से लेकर पकाने तक जो लोग अपनी एक मर्जी से आकर वहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा मैं खाना पकाने वालों की बात करूंगा, वो कितने हाईली ट्रेंड है कि वो क्या नाम लेते हैं, हम तो वैसे टेबल स्पून के वो इनकी चम्मच से डाल देना इनके यार टेबल ज्यादा खराब ना हो, तो इस तरह पूरे वो भर भर के डालना और भाई फिर स्वाद को वो कायम रखना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है खाना बनाना। अच्छा, इससे पहले भी हम लोगों ने ना देखे हैं किचन, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने बांग्ला साहब का किचन भी देखा था, ठीक है, और भी हम लोगों ने एक दो वीडियोस ऐसी देखी थी जहां पर जो बहुत सारे लोगों के लिए मील्स प्रिपेयर किया जाता है। बट ये वाला आश्रम का जो किचन है ना, ये मुझे काफी ज्यादा एडवांस लगा। लाइक इसमें हम लोगों ने काफी नई चीजें देखी, जैसे कि सब्जियों को धोने वाला जो एक प्रोसेस था वो मुझे काफी ज्यादा इसमें नया लगा। मतलब अगर देखा जाए तो हर चीज, जैसे रोटी देख लो वो खुद बनकर आ रही है, ठीक है, सब्जी आपको काटनी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो वॉलंटियर काम करना चाहते हैं वो आपको उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, वैसे रोटियों वाली मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने मशीन पता कहाँ पर देखी थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में देखी थी। वहां पर मेरा दोस्त हॉस्टल में रहता था, तो वहीं पे क्योंकि उनका मेस वगैरह होता था, तो वहीं पर ये मशीन लगी हुई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम देखे बड़ा हैरान हुआ था। एक साइड पे वो दो बंदे खड़े थे, वो रोटियां डालते जा रहे थे, पेड़े डाल रहे थे वही ना यार, पेड़ा वो रोटी गोल बनाकर उस पर रख रहे थे ना। अच्छा, ऐसा? हाँ, अच्छा। और दूसरी साइड से वो पक्के निकल आती थी। तो कहने में देख के बड़ा हैरान हुआ, वाह भाई दुनिया कहाँ पे पहुंच गई है। हाँ, ये तो है, बहुत चेंज हो गया टाइम। बट इस आश्रम की सबसे ज्यादा खूबसूरती मुझे ये लगी है कि डिफरेंट तरह के लोग, यानी कि हर रंगो नस्ल के लोग वहां पर आए हुए हैं, और वो लोग वहां पर अपने अपने तरीके से जो भी, मतलब उनको ऑब्वियसली वहां पर कुछ उनको कनेक्शन फील होता है, तो वो लोग वहां पर आते हैं। और मतलब जिस तरीके से मेडिटेट करना और डिफरेंट एक्टिविटीज में पूजा करना, या फिर जैसे बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे थे, तो ये चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं। और मुझे ये जब मैं ये सारी वीडियो देख रही थी डिफरेंट लोगों को, तो बहुत टाइम पहले मौसम रिमेम्बर हम लोगों ने वीडियो देखी थी एक श्री रविशंकर जी की, और उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि वसुदेवा कुटुंबकम, यानी कि द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो वो चीज मुझे आज यहाँ पर नजर आई, जैसे डिफरेंट तरह के लोग, हम कहेंगे कि फॉरेनर्स भी हमें बहुत ज्यादा नजर आए। तो यस, मैं ये बात सोचती हूँ कि इसका एक अपना ही मजा है यार। वैसे ये हकीकत है कि क्या नाम लेते हैं, जब आप इतने ज्यादा लोगों को जो डिफरेंट रेस से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें एक ही जगह पर बैठकर जो है वो इनके काम करते हुए देख रहे हो, एक ही जगह बैठकर वो खा रहे हो, तो आपके अंदर जो है ना एक अलग तरह की फीलिंग्स होती हैं कि यार चलो दुनिया में कोई ऐसी जगह भी तो है ना जहाँ पर सारे एक बराबर बैठे हुए हैं। वरना मोस्टली हम यही देखते हैं कि भाई जो है रेसिज्म हमें जो है रंगों को लेकर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम अक्सर जो है काला रंग जो होता है उसे डिग्रेड कर देते हैं जिस इंसान का, और जिसका वाइट कलर होता है उसे हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ पर काफी अच्छी लगती है। वैसे मुझे कलर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा लोग ना रेसिस्ट होते हैं पैसों को, ठीक है ना, अपने स्टेटस को लेकर। रंग आपका साफ है या आपका रंग हम कहेंगे थोड़ा दबा हुआ है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा फर्क पड़ता है, मौसम अगर आपके पास पैसा है ना, तो लोग उसी बंदे के साथ बैठकर भी खाएंगे। हम लोग बहुत, मुझे लगता है कि मुनाफिक लोग होते हैं कि हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं। बट आई थिंक ये बहुत डिबेट है। हाँ, तो हाँ, लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि ना यहाँ पर ये चीज इस पॉइंट पर आकर आपको ना अपनी रूट्स के साथ जोड़ती है
कि इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, इंसान को क्या चीजें सीखनी चाहिए, सिंपल लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए। जैसे सात्विक फूड बीच में सर्व किया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आई नो अब यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ देंगे हम लोग सुनने के लिए, बट धीरे धीरे चेंज आता है, एकदम से कभी किसी में चेंज नहीं आता। जब भी आप कुछ चीजें बदलना चाहते हैं, बिल्कुल वो एक प्रोसेस रहता है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि सारी जिंदगी प्रोसेस रहता है कि आप अपने लाइफ में जब चीजें लर्न करना चाहते हैं या नई चीजें ऐड करना चाहते हैं। खैर बट ये है कि जिस तरीके से इतने सारे लोगों को मैनेज करना एक टाइम में, यानी कि 1 घंटे से भी कम टाइम में वो फूड वगैरह उनको खिला देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है यार। उसके अलावा भी अगर देखे तो वहां पर जो है एक पूरा वो छोटा सा शहर ही बसाया हुआ है जहां पर इतने ज्यादा लोग जो है रहते हैं, जिनमें से कुछ वहां पे परमानेंट लोग रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यानी कि कुछ दिनों के लिए आते हैं फिर वहां पर चले जाते हैं वापस। तो इतने लोगों को वाकई मैनेज करना A to Z जो है वो आसान नहीं होता, छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीजें जो होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि मैंने जितने भी इंडिया में आश्रम की मैं बात करूं या गुरुद्वारा की बात करूं, उन्हें जिस तरह चलाया जा रहा है, उनमें जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मेरे लिए काफी ज्यादा हैरानकुन है। बल्कि हम ये वीडियो देख के यही इनके दिन में भी शायद आया हो, मेरे दिन में भी आई ये बात कि क्या नाम लेते यहाँ पर जब हम दरबारों में जाते हैं तो हमें इस तरह के सिस्टम कभी नहीं देखने को मिलते। वैसे तो हमें काफी मुद्दत ही होगी किसी दरबार गए हुए, लेकिन जो है यहाँ पर हमें इस तरह का निजाम देखने को, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं देखने को मिलता। जैसे वीडियो देखते साथ ही मैंने मौजूद की बात बोली थी, मौजूद यहाँ पर क्या कभी ही मैंने नहीं देखा इस तरीके से। तो मुझे कहता दरबार में देख लेना, मैंने कहा दरबार में मैं इतना ऑर्गेनाइज नहीं देखती चीजों को। बट पता है एक चीज ये कि मेन पर्पस जो इस जगह का है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों को जोड़ना, लोगों को उनकी जिंदगियों में एक सुकून लेकर आना और उनकी लाइफ को एक राह दिखाना, एक रास्ता दिखाना कि आपको क्या रास्ता फॉलो करना, वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा वैसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो जितने भी आश्रम रहते हैं, आई मीन इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और इतना ज्यादा वहां पर ऑब्वियसली खर्चा होता है, तो क्या लोग इतना ज्यादा डोनेट करते हैं उन मतलब ये जो जितना भी खाना वगैरह ये सारी चीजें लोगों के डोनेशंस पर होती हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें होती होंगी। लोग भी बहुत ज्यादा डोनेट करते होंगे और जो है गवर्नमेंट भी शायद सपोर्ट करती हो, लेकिन लोगों की तरफ से काफी ज्यादा हमें लगता है डोनेशन मिलते होंगे। क्योंकि अगर मोस्टली बात करें तो जो आश्रम्स होते हैं या डिफरेंट टाइप की एनजीओज होती हैं, उन्हें नेशनली और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा जो है वो आपको डोनेशन देते हैं। बिल्कुल, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप में से किस ने इस आश्रम को विजिट किया? मुझे तो खूबसूरत इतना लग रहा है, स्पेशली रात का व्यू बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो ऊपर से ड्रोन शॉट जो लिया हुआ था, मुझे वो ऐसे लग रहा था जैसे वो ना एक फ्लावर बना हुआ है। हाँ, फ्लावर भी लग रहा था। और जो रात के टाइम पर वो ऐसे जो साइडों पर थोड़े ऐसे तारों वाला एक सीन बना दिया था ना, मुझे तो बिल्कुल गैलेक्सी लग रहा था। एनीवे ओवरऑल बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी वीडियो थी। मतलब ये एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जितना देखते जाओ ना आपको अच्छा फील होता है। तो गाइज आपने अब जरूर बताना है कि किस किस ने विजिट किया हुआ है या इसके अलावा और कौन कौन से आश्रम है जहां पर जो फ्री मील है वो लोगों को इस तरीके से सर्व किया जाता है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।